Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 2 medical and non-medical stream. Today we are continuing chapter 4, that is moving charges and magnetism. First of all, we are discussing about Ampere's law and Ampere's circuital law. And actually it is a general law and it is used to calculate magnetic field in symmetrical situations, like you are taking any loop, circular loop, cylindrical loop. So in all the cases, in all the symmetrical situations, we can use the Ampere's circuital law. But the most important point is that you have to take in a loop, a closed path, that is known as the Ampere's loop, which is very necessary to use this Ampere's law to calculate the magnetic field by using the circuital law. And the statement is that it states that this integral का मतलब है B dot dl, B vector dot dl vector. B is a magnetic field, dl vector कोई भी small element, हमने इस पूरी लूप पे कोई भी स्मॉल एलिमेंट ले लिया, छोटा सा सेक्शन ले लिया जिसको मैं dl वेक्टर से डिनोट कर रही हूँ, उसका क्लोज इंटीग्रल दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द आई, दैट इज टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ. टोटल करंट थ्रेडिंग का मतलब है कि इसकी आउटर साइड में जो करंट पास कर रहा है, यानी कि इसके सर्कमफ्रेंस या हम कह सकते हैं इसके पैरामीटर से जो करंट पास कर रहा है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म थ्रेडिंग हियर. Okay, and mu naught is the absolute permittivity of this free space. And we are considering some kind of sign conventions here, like if we are taking I1, that is in the sense of B dot dl, magnetic field is in this direction, that is in clockwise, and I is also accompanying with this manner. That is why I1 is taken to be positive here, but I2 is not accompanying this one. It is not entering in this one, it is just leaving in this one. That is why I2 is taken to be negative. Or you can also calculate it by right hand thumb rule, that when fingers of right hand curled in the sense, the boundary is transferred in the loop integral, that is close integral. ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन में, इसे हम बोलते हैं close integral of b vector dot dl vector. Then the direction of the thumbs give the sense in which I is regarded to be positive. अगर तो I b dot dl की ही सेंस में जा रहा है, उसी की ही कर्ल में जा रहा है, then it be taken to be positive, otherwise negative. So the net B dot dl vector is equals to mu naught I1 plus I2 आना चाहिए था, but I2 is in the opposite negative one, so I1 minus I2. There is a net current flow is IE. So you can write it mu naught IE, say as it is. And the relation 1, you can see that inverse relation, the B dot dl doesn't depend upon the shape and size of the loop. It is just only depend upon the total current threading through the closed path or the loop. That is why we are saying that relation 1 is independent of the size and shape of the closed path or loop enclosing the current. Or in short, you can say that Ampere's circuital law states that the line integral of the magnetic field around any closed path in free space is equals to absolute permittivity times the net current I passing through the surface enclosed by the closed path. That is B dot dl vector is equals to mu naught I over the closed integral. Now, proof of the Ampere's circuital law, we have two methods. First method is we are considering long thin straight conductor XY in the plane of paper. XY एक कंडक्टर लिया है जिसमें से I करंट फ्लो किया कर रहा है और उसकी वजह से अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, कि कोई भी वायर है उसने करंट कैरी किया हुआ है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इन द कंसेंट्रिक सर्कल्स. यू नो दैट. अब मैंने कोई भी एक कंसेंट्रिक सर्कल उठा लिया, उसमें स्मॉल एलिमेंट ले लिया और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड एज अलोंग द टेंजेंट टू द लूप. इस लूप के टेंजेंट से मुझे उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी बच्चे. एंड उसी डायरेक्शन में क्या जो है एलिमेंट है दैट बी टेकन एट द पॉइंट P पे, मैंने कोई भी स्मॉल एलिमेंट लिया उसकी भी डायरेक्शन B के ही अलोंग है. इसका मतलब B और DL में जो थीटा है दैट वुड बी इक्वल टू 0 डिग्री. और मैंने अब राइट हैंड साइड ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है एम्पियर्स रूल का, दैट इज B डॉट DL ओवर द लाइन इंटीग्रल क्लोज सरफेस्ड
उसको मैं तोड़ के लिख सकती हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट की वजह से कितना है प्लस सेकेंड एलिमेंट की वजह से कितना है एंड सो ऑन, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि सभी स्मॉल एलिमेंट्स को ज्वाइन करके आपके पास जो भी बचता है दैट इज द इंटीग्रेट वन, दैट इज द होल पार्ट वन। अब बी और डीएल के बीच में क्या है, एंगल 0 डिग्री। हर एक पार्ट में बी डॉट डीएल चाहे वो फर्स्ट का है सेकंड का है 0 डिग्री एंगल है। दैट इज वाई मैंने वेक्टर को हटा के क्या लिख दिया, B1 DL1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री। वो लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली B2 DL2 एंड सो ऑन। अब हमने बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। सबसे पहली एप्लीकेशन जो की थी, आप वीडियो लिंक में जाके देख सकते हैं, दैट इज स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो कितनी आई थी उस लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइड बाई R1। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर बायोट सेवर्ट लॉ की पहली एप्लीकेशन में। Similarly, B2 is equals to mu naught upon 4 pi 2I divide by R2 DL2 and so on। अब आ गया यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I कॉमन, अंदर क्या रह गया DL1 डिवाइड बाय R1 प्लस DL2 डिवाइड बाय R2 एंड सो ऑन। अब ये देखिए ये क्या आ गया, DL जो है वो मैंने इस सर्कमफ्रेंस के अलोंग ली है, जैसे कि ये पार्ट लिया DL इस डायग्राम में भी शो किया हो, यहाँ से आपको अच्छा समझ में आएगा। AB DL1 BC DL2 से CD DL3 ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। अब ये सारे किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, आर्क को। डिवाइड बाय क्या है, R1 R2 इनका रेडियस खुद का, क्योंकि अलग अलग कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, तो आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा d1 प्लस d2 एंड d3 एंड सो ऑन। अब इन सभी एंगल्स को जब मैं ज्वाइन करूंगी तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, और पूरे सर्कल का एंगल कितना होगा, अगर मैं यहाँ से स्वाइप करके ये पूरा स्वाइप कर लूंगी तो मेरा एंगल बन जाएगा 2 पाई रेडियंस। तो इन सब का एडिशन क्या हो जाएगा 2 पाई, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। इन सब को सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई विच इज नथिंग बट द एम्पियर सर्किटल लॉ। इसी के साथ एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट मेथड हमने प्रूफ कर लिया। अब अगर जो P पॉइंट है, अगर P पॉइंट है, आपने ये लूप ली है, इसकी इनसाइड P पॉइंट लाई कर रहा है, तो सिर्फ आपको म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट है सेकंड मेथड, ये बिल्कुल ही सिंपल मेथड है एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करने का। आप दोनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड या दोनों मेथड्स कर सकते हैं। एक स्ट्रेट कंडक्टर, अगेन मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, B के डायरेक्शन इधर DL के डायरेक्शन इधर। अब रेडियस मैंने लिया है A। अब अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, कर्ल ऑफ द ओवर द क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू B DL cos ऑफ 0 डिग्री। क्या आ गया, B DL क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल्स टू B, अब क्या है कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म ले रही हूँ मैं B मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ DL का इंटीग्रेशन करोगे तो वो पूरा का पूरा सर्कल, एक सर्कल ही है ना ये लूप, तो वो पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r, पर यहाँ पे रेडियस कितना a, तो वो कितना आ गया B इंटू 2 पाई a। एंड अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट लॉ, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइड बाई a। एक स्ट्रेट वायर अगर करंट कैरी कर रही है तो कोई भी उस पे पॉइंट उससे थोड़ी सी दूर लाई कर रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बायट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइड बाई a। यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइड बाई a इंटू 2 पाई a। अब यहाँ से सब कुछ कैंसिल आउट करके क्या आ गया हमारे पास, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I, hence proved it is Ampere circuital law। So simple it is. The second method is so simple method to prove the Ampere circuital law. Next is application of the Ampere circuital law। एप्लीकेशंस जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले क्लोज कर्व लूप होनी चाहिए, जिसको हम एम्पियर्स लूप कहते हैं, और हर पॉइंट पे या तो बी परपेंडिकुलर हो या बी नॉन जीरो हो, और टेंजेंशियल भी हो सकती है लूप के, या फिर बी बिल्कुल ही वेनिश हो जाए। ओके, तो ये कंडीशंस और में है, इनमें से एक ही होगी,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि परपेंडिकुलर भी हो, टेंजेंशियल भी हो एक ही टाइम पे, नॉन जीरो भी हो, नहीं। एक टाइम पे इस तरह की मतलब बी की कंडीशंस लाई कर सकती हैं जब भी हम एम्पीयर सर्किटल लॉ यूज कर रहे हैं। अब फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, टू ड्राइव एन एप्लीकेशन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मैंने यहाँ पे अगेन वायर लिया है एक्स वाई, पर यहाँ पे इनफाइनाइट है तो मैंने इसे डॉटेड शो किया है, ये शो करने के लिए कि जो एक्स वाई वायर है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। अगेन एक लूप लिया है मैंने, डीएल वेक्टर लिया है, आर क्यू क्या, आर क्यू इज इक्वल टू डीएल, तो उसी वेक्टर की डायरेक्शन भी अब इस साइड है, बी की डायरेक्शन भी इस साइड है, तो थीटा हो गया अगेन 0, रेडियस कितना है आर, वही सेम बातें, वही सेम चीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर द इंटीग्रेशन, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। सो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या आ गया, 0 डिग्री, बिकॉज बी वेक्टर बी डॉट डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री, यहाँ पे इन दोनों का एंगल कितना है 0 डिग्री। सो बी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन दैट इज म्यू नॉट आई, डीएल का इंटीग्रेशन वही इसका सर्कमफ्रेंस होगा, कितना आ जाएगा बच्चे 2 पाई आर, बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ से बी कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइड बाई आर। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डिवाइड बाई आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 के साथ यहाँ से कैंसिल करोगे वही बात हो जाएगी, बस हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चाहिए क्योंकि इसको हम एज अ कांस्टेंट यूज कर सकते हैं ना, उसकी वैल्यू डिफाइन है अकॉर्डिंग टू द। नेक्स्ट इज b इज इक्वल टू ड्यू टू द करंट। इसमें अब इस एक्सप्रेशन में कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं, दैट इज b जो है इस इनफाइनाइट वायर की वजह से, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से जो हमारे पास बी आया है उसकी जो सिमेट्री होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, और हर पॉइंट पे वो टेंजेंशियल एक्ट करेगा यहाँ पे, और जो भी उसकी लाइंस देंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देंगी। और ये अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को थ्योरेटिकल प्रूफ प्रोवाइड करता है। अरेस्टेड ने भी ऐसे कहा था कि एक वायर है, करंट कैरी की हुई है, तो उसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में लाई होगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। आर इंक्रीज हुआ तो बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज इंक्रीजिंग देन बी वुड बी इंक्रीजिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।